Hello children, I hope you all are good. Today we are going to discuss SST chapter number 29, that is going to categorize in civics, and the name of the chapter is The Judiciary. The Judiciary. We are going to understand in this chapter about the judiciary, its function, why do we need it, and what are its structure. So let's start the chapter with the discussion of the judiciary. Judiciary is one of the important organ of the government. If you remember, we are having the three organs of the government. One is the legislature, who is going to make the law. Another is the executive, who is going to implement the law. And the third and very important organ of the government is the judiciary. It is called the guardian of the constitution also. Why it is called the guardian of the constitution? Because it interprets the constitution. For example, if the government, means the parliament, has passed such a law which is in against of the constitution's ideal, then the Supreme Court immediately declared that law null and void. So that's why we can say the judiciary interpret the constitution and it's a guardian of the constitution. Now, in spirit, the protects the rights conferred by the constitution. ये भी कह सकते हैं हम, जुडिशरी जो है हमारे राइट्स को भी प्रोटेक्ट करती है, जस्टिस भी प्रोवाइड करती है इंडिविजुअल्स को, एंड मोर ओवर प्रिजर्व द हाई डेमोक्रेटिक आइडियल्स which has been specified in our constitution. So India, the government runs on the principle of the rule of law. इंडिया में यही है, रूल ऑफ लॉ पे गवर्नमेंट चलती है. दिस मीन्स दैट ऑल पीपल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ. नो डिस्क्रिमिनेशन अमंग द पीपल ऑन एनी बिहाफ, फ्रॉम यू कैन से from any background or any caste, religion, linguistic group, etc. There can be no discrimination. Now, why do we need the judiciary? As we know, it's a very important organ of the government. It keeps in check the other organ also. Other organ कौन से हैं हमारे? Executive and legislature. And also it gives justice to the common people. So we need the judiciary for performing following function. Resolution of the disputes. The chunk of the cases brought before the subordinate courts are the disputes. Disputes which occur between the individuals and organization. There are different kinds of the disputes. Maybe the disputes between the two people, maybe the dispute among the communities, maybe the disputes among the individuals and different organizations. There are many cases you can see in the judiciary. So the cases brought before them include property disputes है, trade disputes है, personal dispute है, encroachment है. इतने variety of issues पे disputes होते हैं और वो cases भरे हुए हैं. The court decided these cases how? On the basis of evidence before them. जो evidence brought up किए जाएंगे जुडिशरी के सामने, उन evidence को देख के law के according वो cases solve किए जाएंगे. So, इसका मतलब अगर डिस्प्यूट्स है, झगड़ा है, कॉन्फ्लिक्ट है, तो वो हमें कहाँ सॉल्व करना है? वो हमें जुडिशरी में उसका सॉल्यूशन मिलेगा. ये नहीं कि बस बाहर खड़े होकर पीट दिया, मार दिया, उससे कोई सॉल्यूशन नहीं होगा. सॉल्यूशन हमेशा डिस्प्यूट्स का आपको मिलेगा कहाँ पर? जुडिशरी में. देन गिविंग जस्टिस इन द क्रिमिनल केसेस. देयर कैन बी many crime, different types of crime. Often you can heard the crimes had happened in this society. Number of times. The newspaper report several crime every day. आप देखो, कोई भी न्यूज़पेपर रिपोर्ट उठा के देखो, आपको कोई ना कोई क्राइम किसी ना किसी न्यूज़पेपर पे मिल जाएगा. अब ये जो क्राइम हो रहे हैं उन पे केसेस होते हैं, वो केसेस फाइल होते हैं जुडिशरी में. FIR जो है पहले लिखवाई जाती है पुलिस स्टेशन में, फिर पुलिस जो है उसको इन्वेस्टिगेट करती है और जो भी एक्यूज होता है उसका जो केस बनता है उसे जुडिशरी के सामने लेकर जाती है. देन जुडिशरी डिसाइड द केस, फाइंड द गिल्टी ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस प्रेजेंटेड बिफोर इट एंड देन गिव्स द जजमेंट. सो क्रिमिनल केसेस में भी जुडिशरी का बहुत बड़ा रोल होता है टू प्रोवाइड द जस्टिस.
Then third, protection of fundamental rights and other rights. Our constitution has given us the wonderful fundamental rights. We are having 6 fundamental rights, है ना. लेकिन if anybody is going to violate our fundamental rights, फिर क्या होगा? अगर हमारा कोई fundamental right accept नहीं कर रहा या कोई other rights हमारा violate कर रहा है, then we can directly approach to the High Court and Supreme Court and they can protect our fundamental rights. Interpretation of the Constitution. ये एक बहुत बड़ा रोल है जुडिशरी का. It is the judiciary which interprets our constitution and its spirit also. If the legislature makes a law which is in the violation of any ideal, any provision of the constitution, तो मैंने आपको पहले भी बताया बेटा, judiciary declare that law as null and void. इसको आप अंडरलाइन कर लो और हमेशा के लिए याद कर लो. कोई भी ऐसा कानून आ गया जो हमारे आइडियल, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है ना, आइडियल सोवेरियन, रिपब्लिक, फ्रेटर्निटी और फ्रीडम, इक्वालिटी, इससे वायलेट करेगा तो जुडिशरी उसे वहीं डिक्लेयर कर देगी कि ये नहीं है सही और ये नहीं आएगा. फॉर एग्जाम्पल, द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक्ट आया था 1989 में. इट स्टेट्स दैट इफ अ कंप्लेंट इज फाइल्ड बाय अ मेंबर ऑफ SC/ST अगेंस्ट एनी पर्सन, द पुलिस हैज़ टू टेक इमीडिएटली एक्शन. नाउ व्हाट हैपन, FIR होगी, उस पर अरेस्ट किया जाएगा पर्सन को एंड ही कैन नॉट बी गिवन अ एंटिसिपेटरी बेल. When this provision was challenged, the Supreme Court in 2018 decided that this was in violation of the fundamental rights and court could give anticipatory bail if the complaint was an abuse of the law. भाई अब आप ऐसा कानून बना रहे हो कि किसी ने भी SC/ST के खिलाफ कुछ भी कह दिया तो कोई भी SC/ST पर्सन FIR लिखवाता है तो उस बंदे को जेल में डाल दिया जाएगा, उसे कोई बेल नहीं मिलेगी. ये गलत है क्योंकि हर एक व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अधिकार है. क्या सिर्फ एक कंप्लेंट पे आप एक बंदे को अरेस्ट कर दोगे और बेल नहीं दोगे? यहाँ पर जुडिशरी ने कहा उसका फंडामेंटल राइट्स जो है वो खत्म हो रहा है. उसको भी अपनी बात रखने का मौका दें कि उसने क्या कहा, कैसे कहा या नहीं कहा, एविडेंसेस. लेकिन अगर आप एंटिसिपेटरी बेल ही नहीं दोगे, उसे जेल में ही डाल दोगे, तो ये उसका फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है. तो वहाँ पर उसे जो है उस कानून को इमीडिएटली उन्होंने नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया डिस्कशन के बाद. सो वी कैन से जुडिशरी इंटरप्रेट द लॉ, इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन. स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट्स ऑफ लॉ इन इंडिया करते हैं बात. तो यू कैन सी द स्ट्रक्चर, इट्स लाइक अ पिरामिड. अगर आप देखो तो 3 टायर्स हैं इसमें बेटा. आपका सबसे हाईएस्ट जो सुप्रीम है at the top, that is Supreme Court, highest court है इंडिया की. After that उसके नीचे आता है आपका second high courts that are established in the states. High courts जो हैं are binding on all subordinate courts. अब आप ये देखो इसके नीचे subordinate courts हैं जो आपके district courts हैं, लोक अदालत हैं. और ये क्या है, ये एक प्रॉपर एक चेन सिस्टम है, इंटीग्रल चेन सिस्टम, जिसे हम कह सकते हैं कि बाइंड है. द इंडियन जुडिशरी इज एन इंटीग्रल सिस्टम. ऑल 3 टायर्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर. कोई भी अपने में अलग नहीं है. मान लो आपने कोई अपील की, आपका केस गया यहाँ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया, वहाँ पे केस की सुनवाई हुई एंड आफ्टर दैट द पर्सन फाउंड द गिल्टी, उसको पनिशमेंट मिली. Now the person is having a authority to appeal in the high court. वो पर्सन अगर हाई कोर्ट में जाता है सो हाई कोर्ट उस केस को सुनेगा, बट बिफोर डैट वो सबऑर्डिनेट कोर्ट से सारी डिटेल लेगा, सारे एविडेंस लेगा, उससे कंसर्न करेगा एंड वंस अगेन दे कैन डिस्कस एंड डिबेट ऑन दैट पर्टिकुलर केस. अब ऐसा होगा हाई कोर्ट में पर्सन ने अगर अपील किया वहाँ पे फिर से सुनवाई होगी. अब आप ये देखो ये इंटीग्रल चेन सिस्टम है. अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट में चला गया, वहाँ पे वो केस की सुनवाई हुई.
मान लो वहाँ पे भी आपको सही न्याय नहीं मिला, आपको लगता है कि नहीं आई एम नॉट गिल्टी, इस केस की दोबारा सुनवाई होनी चाहिए, रिकंसीडर करना चाहिए, यू कैन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। यहाँ से सुप्रीम कोर्ट जाओगे। नाउ सुप्रीम कोर्ट विल आस्क all details and everything, every hearing detail from the high court and then to the subordinate courts also, and the decision of the higher court are binding on all subordinate courts। आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि हमेशा जो है इनके अगेंस्ट में ही जा रहा है डिसीजन, प्रॉपर तरीके से सुनवाई होती है। हाई कोर्ट भी ये देखता है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट ने ऐसे ही तो डिसीजन नहीं लिया होगा, और सुप्रीम कोर्ट भी ये चीज़ों को चेक करता है। इन केस अगर लगता है कि कोई एविडेंस छूट गया है, कोई बात आ गई है, तो हो सकता है कि आपको वहाँ पे फ्रीडम मिल जाए, आप वहाँ एक्यूज ना हो और आपके फेवर में आ जाए रिजल्ट। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया फिर वो फाइनल हो जाएगा। इट मीन्स यू आर हैविंग द अपील पावर। और यहाँ पर क्या है, ये इंटीग्रल सिस्टम है कि दे आर टेकिंग द कोर्ट ऑफ द केस ऑफ द लोअर कोर्ट्स। हाई कोर्ट से केस ले रहे हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट से केस ले रहे हैं। सो ये चेन सिस्टम चल रहा है। द स्ट्रक्चर एंड द पावर ऑफ हाई कोर्ट आर मच लाइक दोज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आप इस टेबल को देखो, सुप्रीम कोर्ट क्या है, हाईएस्ट कोर्ट है इंडिया की, और हाई कोर्ट क्या है, वो स्टेट में जो है हाईएस्ट कोर्ट है, पर्टिकुलर स्टेट में। तो ये स्टेट्स में होते हैं, ये पूरे नेशन का है। देन इट हैज़ द चीफ जस्टिस एंड 25 अदर जजेस। CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हमेशा याद रखो CJI, और 25 और जजेस होते हैं केस की सुनवाई के लिए। यहाँ पे हाई कोर्ट में देखोगे दे आर हैविंग अ चीफ जस्टिस फॉर द हाई कोर्ट एंड एज मैनी जजेस एज मे बी कंसीडर्ड एडिक्वेट फॉर द स्टेट। कोई फिक्स यहाँ पे नंबर नहीं है अदर जजेस का, स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने जजेस और चीफ जस्टिस के साथ अपॉइंट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में देखो प्रेसिडेंट अपॉइंट्स इट्स जजेस इन द कंसल्टेशन विद द CJI, चीफ जस्टिस। जो 25 जज है ना, वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा इनसे कंसीडर करके। यहाँ पे देखो प्रेसिडेंट अपॉइंट्स इट्स जजेस इन द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस एंड एज वेल एज द स्टेट गवर्नर से भी डिस्कस करेगा। सुप्रीम कोर्ट में अ जज होल्ड ऑफिस कब तक, एट द एज ऑफ 65 ईयर। इतनी एज तक वो ऑफिस होल्ड कर सकता है। और यहाँ पे देखो तो जो आपके हाई कोर्ट के जज होते हैं दे कैन वर्क अंटिल द एज ऑफ 62 ईयर। नाउ CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ओनली बाय इम्पीचमेंट मोशन। इम्पीचमेंट एक मोशन होता है बेटा जो पार्लियामेंट में लाया जाता है। मान लो कोई चीफ जस्टिस प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, बहुत कंप्लेंट आ रही है उनके खिलाफ कि ये अबाइड बाय लॉ नहीं है, सो उनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन आता है जिसमें बोथ द हाउस हैड टू वोट इन अगेंस्ट ऑफ हिम बाय 2/3। मीन्स 2/3 मेजोरिटी से, जितने भी मेंबर हैं उसकी 2/3 वोटिंग लोकसभा में भी और 2/3 वोटिंग राज्यसभा से भी। जब ये बिल पास होगा, इम्पीचमेंट मोशन पास होगा, देन वो अपनी पोस्ट से रिमूव हो सकता है। यहाँ पे देखो सेम, अगर हाई कोर्ट का जज रिमूव करना है तो भी पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट मोशन आएगा। देन मोस्ट केसेस रीच दिस कोर्ट थ्रू अपील। मोस्टली ये अपील केस ज़्यादा आते हैं क्योंकि कोई लोअर कोर्ट में गया, वहाँ पे नहीं हुआ, फिर हाई कोर्ट में गया, वहाँ से सेटिस्फाइड नहीं हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट में आया। सो मोस्टली अपील वाले केसेस होते हैं। यहाँ पे भी आप देखोगे मोस्ट केस रीच थ्रू द कोर्ट थ्रू अपील फ्रॉम द सबऑर्डिनेट कोर्ट। नीचे वाले जो कोर्ट हैं, यहाँ पे हाई कोर्ट के केस आ रहे हैं और यहाँ पर सबऑर्डिनेट कोर्ट के केस आ रहे हैं। अब देखो अ न्यू केस कैन ऑल्सो बी फाइंड इन इट स्पेशली दोज कंसर्निंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसकी बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट के पास केस आता है। डिस्प्यूट बिटवीन द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में अगर कोई लड़ाई हो गई है किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी भी रेवेन्यू, किसी भी इशू पे, सो वो केस सुप्रीम कोर्ट के पास आएंगे डायरेक्ट।
डिस्प्यूट अमंग द स्टेट गवर्नमेंट्स, दो स्टेट गवर्नमेंट में लड़ाई हो गई रिवर वाटर को लेके, किसी भी इशू को लेके, स्टेट गवर्नमेंट के जो डिस्प्यूट्स हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के पास आएंगे। केसेस पर्टेनिंग टू वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट हो रहा है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में आएंगे। एंड PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, अगर हम डायरेक्ट पिटीशन डाल रहे हैं किसी इशू पे गवर्नमेंट के अगेंस्ट और किसी अलग लॉ पे PIL डाल रहे हैं तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के पास आएगी। तो इस तरीके के केस भी आते हैं। यहाँ देखो जो केस आते हैं अपील के अलावा यहाँ पे भी फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के आ सकते हैं। केसेस पर्टेनिंग टू डिवोर्स, मैरिज, विल्स, विल होती है ना, पेरेंट्स लिख के जाते हैं कि ये जो है इसको मिलेगा मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा, ये प्रॉपर्टी का हिस्सा इसको मिलेगा, तो जो विल से रिलेटेड केसेस होते हैं वो भी इधर आते हैं। एंड PIL ऑल्सो। So these are the function and power of the Supreme Court and High Court. Then next देखो, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो होता है फॉर्म अ पार्ट ऑफ द जुडिशियल रिकॉर्ड्स एंड आर रेफर्ड फॉर सब्सिक्वेंट केसेस। सुप्रीम कोर्ट जो भी जजमेंट लेगा, उसको जो भी उसने फैसला लिया है, कैसे लिया है, जो भी प्रोसीजर अपनाया, उसको प्रॉपर जो है रिकॉर्ड में रखा जाता है ताकि आने वाले टाइम पे कुछ उससे रिलेटेड कोई केस आते हैं सो उन्हें रेफ़र किया जा सके कि उस समय ये सिचुएशन थी तो ये निर्णय लिया गया था। देन हाई कोर्ट में देखो द जजमेंट फॉर्म द पार्ट ऑफ जुडिशियल रिकॉर्ड एंड ऑल्सो कैन रेफर फॉर सब्सिक्वेंट केसेस ऑल ओवर द इंडिया। यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है। द प्रेजिडेंट ऑफ एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, चाहे प्रेजिडेंट हो या कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, कैन सीक द एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल मैटर। और लेते भी हैं, प्रेसिडेंट भी एडवाइस लेता है सुप्रीम कोर्ट के जज से और आपके गवर्नमेंट भी लेती हैं एडवाइस। इधर देखो द सुपरवाइज हु, हाई कोर्ट सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ ऑल जुडिशियल वर्क एंड कोर्ट्स ऑफ लॉ इन द स्टेट। दे कैन फ्रेम व्हाट रूल्स एंड रेगुलेशन, और किसके लिए बनाएंगे वो रूल्स एंड रेगुलेशन? फॉर द लोअर कोर्ट्स, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट में जो कोर्ट्स हैं उनके लिए रूल रेगुलेशन बनाएंगे, उनके रिकॉर्ड्स को एग्जामिन करेंगे, उनके फंक्शनिंग को सुपरवाइज करेंगे। सो एक तरीके से सुपरवाइजर की तरह काम करता है हाई कोर्ट फॉर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। अब इतनी बार सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आ गया, इसके स्ट्रक्चर को भी पढ़ लेते हैं। ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आपको हर डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगे। सो दे कंप्राइज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड लोअर कोर्ट सच एज सेशन कोर्ट हो गया आपका, सिविल कोर्ट हो गया आपका, मुंसिफ कोर्ट हो गया। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी और टू क्लास। नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड अदर इज अदर कोर्ट्स। दो क्लासेस में हमने डिवाइड की। जज जो इसके होते हैं कैसे अपॉइंट होते हैं? फॉर द स्पेसिफाइड एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, स्पेसिफाइड होती है कि इतनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, इतना प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन अ डिस्ट्रिक्ट आर अंडर द ओवरऑल चार्ज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो होते हैं ना वो इसके इंचार्ज होते हैं। ही इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, जो स्टेट के गवर्नर होंगे वो अपॉइंट करेंगे। जनरली द डिस्ट्रिक्ट जजेस बोथ द सेशन जज एंड एज वेल एज द सिविल जज, दोनों के हेड होंगे। एज अ सेशन जज ही हियर्स द क्राइम केस और सिविल जज के तौर पे ही हियर्स द सिविल केस। सिविल केस रिलेटेड टू द फैमिली मैटर, प्रॉपर्टी है, मैरिज है, डिवोर्स है, लेकिन क्राइम तो मर्डर है, थेफ्ट है, इस तरीके का। तो दोनों दे कैन बी टू डिफरेंट पर्सन इन दीज पोस्ट इन सम डिस्ट्रिक्ट। कुछ डिस्ट्रिक्ट में दो अलग अलग पोस्ट बनाई गई हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की, डिस्ट्रिक्ट जज की, और कुछ जगह एक ही पोस्ट है। सो डिस्ट्रिक्ट जज कैन डील विद ऑल टाइप्स ऑफ केस बट द सबऑर्डिनेट जज कैन डील with the cases as per their specified power. एक एग्जाम्पल देखते हैं। A district judge can award the capital punishment, जिसे हम कहते हैं डेथ पेनल्टी। डिस्ट्रिक्ट जज के पास ये पावर है, दे सकता है, लेकिन सब ऑर्डिनेट जज जो होता है ना वो कैपिटल पनिशमेंट नहीं दे सकता बेटा।
District judge also hears appeal against the judgment of lower court. बट आपका जो अदर होता है ना, ये सेशन जज जो होता है या सबऑर्डिनेट जज जो होता है, वो अपील पावर उसके पास नहीं होती कि अपील किए हुए केसेस को सुन ले. सो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. मेन डिफरेंस कैपिटल पनिशमेंट को लेकर है. लोक अदालत की अगर हम बात करें, सो इन आवर कंट्री जुडिशियल प्रोसेस इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड वेरी लॉन्ग. आपने ना सनी देओल की एक मूवी का डायलॉग भी सुना होगा, क्या कहता है वो, जज साहब तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख. सो लॉन्ग प्रोसेस है. एक हेयरिंग होती है, अगली डेट मिल जाती है, फिर हेयरिंग होती है, अगली डेट मिल जाती है. सो मोस्ट ऑफ द केसेस आर फाउंड फॉर मैनी ईयर्स, एंड दिस इज द रीज़न पीपल ऑफन से दैट जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड. कई बार लोगों को लगता है कि अगर देर से न्याय मिल रहा है तो वो न्याय नहीं है, फिर तो अन्याय है. जो बंदा केस लड़ रहा था वही दुनिया से चला गया लड़ते लड़ते. सो जस्टिस में डिले नहीं होना चाहिए. टू कट द टाइम इन्वॉल्व एंड टू गिव रिलीफ टू द पार्टीज, द सिस्टम ऑफ लोक अदालत वॉज इंट्रोड्यूस. अब ये फील हुआ जुडिशरी को भी कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, बहुत सारे केस पेंडिंग हैं, तो कुछ रिलीफ तो मिलना चाहिए, इसलिए लोक अदालत को इंट्रोड्यूस किया गया, जहाँ पर जो लोकल केसेस हैं उनको शॉर्ट आउट किया जाए, लोगों को भी रिलीफ मिले, टाइम बचे, पैसा बचे. इन 8 cases are decided summarily in a very short time. कैसे वो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं? On the basis of evidence presented before it. It helps to solve cases and give justice promptly also. अगर छोटे छोटे केस हैं तो मीडियोकर के तौर पे उन्हें समझाया जाता है कि आप जाओगे हाई कोर्ट में, आपको इतना सारा मतलब पैसा खर्च होगा, फंडिंग होगी, मिलकर बैठ कर जो है सोल्यूशन निकालो. कई बार मीडियोकर के तौर पे भी सोल्यूशन निकाला जाता है, और कई बार लोकल मसले जो एविडेंस आता है लॉ के अकॉर्डिंग उसको शॉर्ट आउट किया जा सकता है. तो सिस्टम हैज़ प्रूव्ड गुड फॉर द पुअर पीपल. इट हैज़ ऑल्सो कट डाउन अ लॉट ऑफ बर्डन ऑन लॉ कोर्ट्स. A लोक अदालत normally solve hundreds of cases in one sitting. एक सिटिंग में कई बार इतने सारे केसेस को वो सॉल्व कर देते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स दीज केसेस आर रिलेटेड टू द वेरी वेरी स्मॉल डिस्प्यूट्स. इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करें, ये इंडिया का इम्पॉर्टेंट फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है. इट इज़ नॉट अंडर द प्रेशर ऑफ एनी गवर्नमेंट एंड नॉट डिपेंडेंट टू द अदर ऑर्गन्स. In India, we are having the separation of power and that is practiced. This means that the legislature will make the law, executive implement the law और judiciary interpret the law. So power बिल्कुल सबकी separate है, अलग अलग है. Judiciary also keep the other 2 organs in check. It can decide if the legislature has made the law according to the constitution or not. It can also decide if the execute has done the something wrong or right. कई बार आपने सुना होगा ना कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है, पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है, इसको रोकने के लिए काम कीजिए. सो सुप्रीम कोर्ट है भाई, हाईएस्ट अथॉरिटी. इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर इंडिपेंडेंस नहीं होगी, इमेजिन करो तो क्या होगा, इन विच द जज ऑफ अ कोर्ट इज़ अपॉइंटेड बाय एन ऑफिसर, और ऑफिसर के खिलाफ केस आ गया तो क्या होगा, जज कभी भी उस ऑफिसर के अगेंस्ट निर्णय नहीं देगा. दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, उसने उसे अपॉइंट किया है, उसके प्रेशर में है वो. लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है. इंडिया में जुडिशरी टोटली इंडिपेंडेंट है. एन अक्यूज्ड इज कंसीडर्ड इनोसेंट अंटिल ही इज प्रूवन गिल्टी इन द कोर्ट. जुडिशरी क्या करती है, जब तक प्रॉपर एविडेंस एक बंदे के खिलाफ नहीं आते तब तक वो उसे क्या कहती है, वो गिल्टी नहीं है. हम आप उसे मुजरिम नहीं कह सकते. सपोज द पुलिस हैज़ फाइल्ड एन FIR थेफ्ट अगेंस्ट मिस्टर बी. किसी के अगेंस्ट कर दिया ना FIR, द कोर्ट विल कंसीडर मिस्टर बी इनोसेंट, नॉट द गिल्टी. चाहे पुलिस लेकर आई है, वो इन्हें इनोसेंट मानेगी जब तक पुलिस इज एबल टू प्रेजेंट एडिक्वेट एविडेंस अगेंस्ट हिम. जब तक प्रूफ नहीं हो जाता, और प्रूफ हो गया देन मिस्टर बी इज गिल्टी टिल द टाइम ही इज इनोसेंट. तो ये इंडिपेंडेंसी है ना जुडिशरी की.
the judiciary practices the rule of law, that is, all people are equal before the law, whether they are from the high or low caste, rich or poor, literate or illiterate, young or old, everyone is equal. Now the judges are appointed by the president or the governor. However, once a person has been appointed as a judge, so it is very difficult to remove him from his post. क्योंकि इम्पीचमेंट मोशन आसान नहीं है बेटा कि दोनों हाउस में 2/3 मेजोरिटी से वोट जो है उनके अगेंस्ट में पड़े, सो मुश्किल है. दिस हैज़ बीन डन सो दैट ही कैन एक्ट इंडिपेंडेंटली एंड टेक डिसीजन विदाउट एनी फियर एंड फेवर. ऐसा इसीलिए किया गया था कि जज को रिमूव करना आसान प्रोसेस नहीं होना चाहिए, ताकि वो बिना डरे इंडिपेंडेंटली वर्क कर सके, क्योंकि उसे पता है आसानी से मुझे अपनी पोस्ट से कोई हरा नहीं सकता या हटा नहीं सकता. PIL की बात करते हैं. PIL मीन्स पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. There are cases when a government action or any other activity does not cause a direct harm to the litigant, but he feels that this is the right to raise the issue because the matter falls in the scope of public interest. कई बार ऐसा होता है, कोई ऐसा कानून या गवर्नमेंट का कोई ऐसा एक्शन जो डायरेक्टली मुझे तो नहीं इफ़ेक्ट कर रहा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सोसाइटी को इफ़ेक्ट कर रहा है या आने वाले टाइम पर ये हमें किसी ना किसी तरीके से हार्म पहुंचाएगा. तो इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल कोई भी एक व्यक्ति, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन, PIL फाइल कर सकती है हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी डायरेक्टली. द फर्स्ट सच पिटिशन वॉज फाइल्ड बाय कपिला, आपको ये नाम दिया हुआ है कपिला हिंगोरनी, इन 1979. ये फर्स्ट PIL थी इंडिया में, टू ब्रिंग द डेप्लोरेट कंडीशन ऑफ द प्रिजनर्स इन बिहार टू द नोटिस ऑफ द कोर्ट. उन्होंने इस PIL में लिखा था कि बिहार की जेल में जो कैदी हैं उनकी कंडीशन सही नहीं है, उनको प्रॉपर टेक केयर नहीं किया जाता. टेकिंग cognizance of this, Supreme Court held that the government should provide the benefit of free legal aid and fast hearing of this case. सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया जल्दी से इसे सुना जाए, इस पे एविडेंस निकाले जाए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और कैदियों की बात को भी देखा जाए, और इस केस को, इस PIL को जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आया है, इस पे हेयरिंग तेजी से होनी चाहिए. सो द PIL is as per the constitutional provision in which prompt social justice can be given to all people. यानी ये एक हमारे हाथ में बेटा पावरफुल वेपन है. if we feel that government is doing the wrong action in against of the society, so we can approach to the high court and supreme court directly in the form of PIL. तो ये हमेशा हमें याद रखना है. एंड मोर ओवर हमें ना इस PIL में बहुत फैसिलिटीज मिली है. पुअर पर्सन कैन फाइल द PIL बाय टेलीग्राम और लेटर. अगर उसे लगता है कि मैं कोर्ट तक नहीं पहुंच सकता, तो ये कम्युनिकेशन प्रोसेस को यूज कर सकता है. एंड कोर्ट को वो खुद कह सकता है कि मेरे पास एडवोकेट हायर करने के लिए पैसे नहीं है, तो कोर्ट विल हायर द एडवोकेट फॉर दैट. Thus, it is a good tool in the hands of common people to get the quick justice. The PILs have helped to solve many problems in the society, including the closure of pollution, industrial units, etc. However, sometimes PIL should not be frivolous. कई बार होता है, हमें लगता है कि PIL पावरफुल वेपन है, लेकिन बेटा तब जब हम सच्चाई के लिए और किसी बड़े इशू के लिए लड़ रहे हैं. कई बार होता है कुछ लोग ऐसे ही PIL डाल देते हैं कुछ रेवेंज के लिए, कुछ बदला लेने के लिए, तो वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट जो है एक्शन लेती है कि आपने जो PIL डाली है वो गलत है. हमेशा फेवर में नहीं आएगा आपके रिजल्ट. एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक PIL जो है गुजरात के हाई कोर्ट में फाइल हुई थी, सीकिंग क्लोजर ऑफ एस्बेस्टोस फैक्ट्री इन द स्टेट बिकॉज इट इज़ हार्मफुल फॉर द ह्यूमन हेल्थ. ये डाला गया कि इसको बंद करो इस फैक्ट्री को, ये तो ह्यूमन हेल्थ के खिलाफ है.
बेकार है ये फैक्ट्री। लेकिन कोर्ट ने जब इस पे हियरिंग की, इस पे जो है एविडेंस कलेक्ट करवाने शुरू किए, तो पता चला ये बेकार PIL है। ये सिर्फ इसलिए फाइल हुई है क्योंकि दूसरा बिजनेसमैन इस फैक्ट्री से जो है कॉम्पीट नहीं कर पा रहा, वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाह रहा है, तो इसलिए उस PIL को खारिज कर दिया गया। आगे नहीं उस पर रिजल्ट दिया गया कि ये गलत है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PIL की बात करें, अ PIL प्रोटेक्ट्स द राइट टू इक्वालिटी, लाइफ एंड पर्सनैलिटी। हमारे राइट टू इक्वालिटी को PIL प्रोटेक्ट करता है। इट फंक्शन एज एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट फॉर चेंजेस इन द सोसाइटी सो डैट सोशल वेलफेयर अच्छे से हो सकें। एनी पर्सन कैन सीक अ रेमेडी। कोई भी पर्सन PIL डाल सकता है अगर उसे लगता है कि मेरा एक्सप्लॉयटेशन हुआ है या ये गलत हुआ है। अ PIL कैन बी फाइल्ड ओनली अगेंस्ट अ गवर्नमेंट ऑफिसर डिपार्टमेंट। ये ध्यान रखना है कि PIL ये नहीं है कि आपने मेरे खिलाफ डाल दी, मैंने आपके खिलाफ डाल दी। इट इज़ ओनली अगेंस्ट द गवर्नमेंट एक्शन। नाउ लेट्स डू द क्विक रिविजन. We have discussed in this chapter, judiciary keeps the other two organ in always check. The judiciary gives justice in disputes and also the criminal cases. Judiciary protects fundamental rights and interpret the constitution too. After that, the Supreme Court is the highest court and high courts function at the state level. Subordinate courts are located in the district, तहसील एंड डील्स विद बोथ सिविल एंड एज वेल एज क्रिमिनल केसेस। लोक अदालत की बात करें, स्पीडी जस्टिस के लिए लोक अदालत को बनाया गया था। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द जुडिशरी टू बी फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, और यही है कि इंडिया की जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। PIL की बात करें, इट सीक्स टू गेट जस्टिस फॉर अ पब्लिक केसेस। So that's end for the chapter. I hope you understand each and every concept. Now it's your turn. Do the exercise carefully.